Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, I hope the festival season was was good, and I hope you took your break, you met your loved ones, and I hope you're back with your you're back on track and you're starting with your preparations. So guys, in this series we are practicing UPSC CSAT comprehension passages, and step by step now we are taking previous year questions. So this is part 2 for your previous year questions from the year 2013. So we'll discuss a couple of passages from this year, and we'll see how to locate the answers and how to solve these passages when you're actually sitting in the exam. I mean, what should be your prospect? What should be your, your elimination skills, what should be your analytical skills, and how to reach the answer comprehensively. So we'll discuss that through the questions, the passages of previous year in this session. But before we begin, guys, I would like to inform you about the comprehensive guidebook that that we are offering you for free. This is absolutely free of cost. The link for this book has been given in the description of the video. You can go and download this book. Now, if you're a beginner, if you are starting out to prepare for CSAT, now this is the best book that there is. It covers everything from syllabus to strategy and sources and everything else that you need to prepare for any of the subjects for your CSAT exam. So go download the book and get benefited from it. So let's start with the session. So this is your first passage. Let's look at the questions first. What we do is we look at the questions first. What is the demand of the questions, and then we read the passage. So first question is, with reference to the above passage, consider the following statement. So we have to tell which of the following statements is correct or not. And second is, what is the crucial message that is conveyed in the passage. So what is the message that has been conveyed? That has to be figured out. So let's read the passage. The existence or the establishment of formal financial institutions like banks, right? So the existence or establishment of formal financial institutions that offer safe, reliable and alternative financial instruments is fundamental in mobilizing savings. So the author says that the first requirement of first requirement to mobilize savings, that means to start saving, is to have a formal financial institutions that offer safe, reliable and alternative financial instruments. So that is what is conveyed. So I'll read it again for you. मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर सेविंग्स करनी है ना, तो आपके आसपास बैंक होने चाहिए. ठीक है, प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, उसके बिना सेविंग्स नहीं हो पाती. So the existence or establishment of formal financial institutions that offer safe, reliable and alternative financial instruments is fundamental in mobilizing savings. Savings करने के लिए सबसे important क्या है? Banks होना, financial institutions होना. Now to save, individuals need access to safe and reliable financial institutions such as banks, जैसे मैं आपको कह रहा था, and to appropriate financial instruments and reasonable financial incentives. So to save, people need to have access to banks and to appropriate financial instruments and reasonable financial incentives. Such access is not always available to all people in developing countries like India, and such banks are not available to all the people in the developing countries like India, and more so in rural areas, and specifically in rural areas. It is unavailable. Savings help poor households manage volatility in cash flow. Savings क्या करती है? जो गरीब घर हैं उनमें जो वॉलेटिलिटी है कैश फ्लो की, उसको मैनेज करने में मदद करते हैं. स्मूथ इन कंजम्पशन, कंजम्पशन को स्मूथ करते हैं, एंड बिल्ड वर्किंग कैपिटल, और एक वर्किंग कैपिटल बिल्ड करते हैं. पुअर हाउस होल्ड्स विदाउट एक्सेस टू अ फॉर्मल सेविंग्स मैकेनिज्म इंकरेज इमीडिएट स्पेंडिंग टेम्पटेशंस. और देखो, सच बात है यार कि गरीब के घर में अगर कैश रखा होगा तो खर्चा जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जरूरत गरीब को पड़ती रहती है. पैसे दिखेंगे तो खर्च जाएंगे, लेकिन बैंक में होंगे ना तो वो रिलेक्टेंसी होती है, यार बैंक में पड़े रहने देना, अभी उसको सेविंग हो रहा है. तो दैट इज व्हाट ही इज बेसिकली सेइंग कि देखो, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है बैंक का होना. बैंक होगा तो ही सेविंग्स शुरू हो पाएंगे, क्योंकि अगर कैश घर में पड़ा होगा तो खर्चने का मन सबका कर जाता है. तो चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं गाइस. विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट है, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट ऑफर एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू रूरल हाउस होल्ड्स टू मोबिलाइज देयर सेविंग्स. देखो, ये एक्सट्रीम ऑप्शन है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑफर नहीं कर रहे. ऐसा कहीं नहीं गिवन है. वो कह रहे हैं कि हाँ, सभी को नहीं मिल पाते, स्पेशली रूरल एरियाज में नहीं मिल पाते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी ऑफर ही नहीं कर रहे, मतलब है ही नहीं रूरल एरियाज में. तो ये एक्सट्रीम ऑप्शन है. तो एक्सट्रीम ऑप्शन को हमेशा एलिमिनेट करते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट ऑफर एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. ऐसा नहीं कह रहा वो कह रहे हैं कि कम है.
सेकंड है पुअर हाउसहोल्ड्स टेंड टू स्पेंड देयर अर्निंग्स और सेविंग्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यस, ये उसने लास्ट लाइन में कहा है कि पुअर हाउसहोल्ड्स विद एक्सेस टू फॉर्मल without access to a formal saving mechanism encourage immediate spending temptations. So that's what he is saying. Poor households tend to spend their savings due to lack of access to appropriate financial instruments. So only option T, statement 2 is the correct statement. And let's look at the second question. What is the crucial message conveyed in the passage? So number one is establish more banks. Second is increase the GDP growth rate. Third is increase the interest rate of bank deposits. Yeah, fourth is promote financial inclusion. So basically, see, establish more banks. देखो ये जीडीपी की कहीं बात नहीं हो रही, इंटरेस्ट रेट की कहीं बात नहीं हो रही, अब ए या डी बचता है अपने पास। अब दोनों को लॉजिकली समझते हैं कि व्हाट इज द मैसेज कन्वेड, कि ज़्यादा बैंक्स बनाओ या फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो ज़्यादा बैंक क्रिएट करने से अगर वो रूरल एरियाज में क्रिएट नहीं हुए तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। एम आई राइट? सो अब उसको ऐसे क्रिटिकली एनालाइज करो, लेकिन प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि सभी को फाइनेंशियल इंक्लूजन के गैमेट के अंदर लेके आए, सभी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बेनिफिट मिले। तो आई थिंक द करेक्ट मैसेज इज देयर शुड बी promotion of financial inclusion. Establish more banks, yes true, but अगर वो रूरल एरियाज में एस्टेब्लिश नहीं हुए तो फिर क्या फायदा है उसका। लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स सभी को इकट्ठा लेके और सभी को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो दैट इज द राइट मैसेज कन्वेड हियर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे सॉल्व करते हैं गाइस पैसेजेस जब आप एग्जाम में हो, बहुत ही लॉजिकली समझ के और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है गाइस, इसमें बहुत बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी 2000 जब पहले ये पेपर में आया था। रीज़न बीइंग क्योंकि इसका आंसर जो दिया था वो भी गलत दिया हुआ था आंसर की में। बाद में ये चैलेंज हुआ और इसका आंसर चेंज किया गया। बट इसमें एक बार पढ़ना ध्यान से वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक तो हमें क्या ढूंढना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैलिड अजम्पशन, क्या अजम्पशन हम ढूंढ सकते हैं। तो सिर्फ 2 लाइन का पैसेज था पूरा, लेकिन अच्छा था, सुनना एक बार। मेनी पीपल इन इंडिया फील दैट इफ वी कट आर डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो हम फौज पे डिफेंस में जो अपना एक्सपेंडिचर जो हम खर्च करते हैं, ऑन वेपन बिल्डिंग, कि वेपन बिल्डिंग मतलब हथियार बनाने में जो हम खर्चा करते हैं, अगर हम उसको कट कर दें, कम कर दें, वी कैन क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ पीस विद आवर नेबर्स, सब्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट और क्रिएटिंग अ नो वॉर सिचुएशन। तो बहुत लोग इंडिया में मानते हैं कि अगर हम नए वेपन बनाना बंद कर दें तो हम एक क्लाइमेट ऑफ पीस क्रिएट कर सकते हैं अपने पड़ोसी के साथ और पड़ोसियों के साथ, और जो कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है ये वो कम कर सकते हैं, या नो वॉर सिचुएशन हो सकता है। अब अगली बात उसने क्या कही है वो सुनना गाइस। पीपल हु प्रोक्लेम सच आइडियाज, वो लोग जो ऐसे आइडियाज को जन्म देते हैं या ऐसे आइडियाज बोलते हैं, पीपल हु प्रोक्लेम सच आइडियाज आर आइदर द विक्टिम्स ऑफ वॉर, या तो वो लड़ाई में क्षतिग्रस्त मतलब चोट खाए हुए लोग हैं, ठीक है, और द प्रोपगेटर्स ऑफ फॉल्स आर्ग्यूमेंट, और वो क्लियरली बोल रहा है, या फिर वो लोग हैं जो झूठा आर्ग्यूमेंट, गलत आर्ग्यूमेंट प्रोपगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो या तो देखो भाई फौज में किसी को अगर चोट लगे, वो कहता है इंसान जो मतलब किसी का मतलब भगवान ना करे पैर पे चोट लग गई, हाथ में काम नहीं कर रहा या बेड रिडन हो गए, वो कहता है कि भाई ये यार ये मत करो लड़ाई वगैरह ना, क्यों करना है लड़ाई। या फिर वो दूसरे लोग कौन है, वो लोग जो गलत आर्ग्यूमेंट को प्रोपगेट करते हैं। तो इसने कहा है पीपल हु प्रोक्लेम सच आइडियाज आर आइदर द विक्टिम्स ऑफ वॉर, जो खुद लड़के लड़ाई खत्म से हार के मतलब हार के नहीं चोट खा के घर आए हैं, या फिर वो लोग जो गलत आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने वेपन बिल्डिंग पे अगर हमने पैसे इन्वेस्ट करना कम कर दिया तो एक पीस का एनवायरनमेंट बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ये झूठ बात, गलत बात है कह रहा है, ये ऑथर ही कह रहा है पैसेज में। तो अब देखते हैं गाइस अपने अजम्पशन क्या दिया उसने। बिल्डिंग ऑफ वेपन सिस्टम्स बाय अस हैज इंस्टिगेटेड आवर नेबर्स टू वेज वॉर्स अगेंस्ट अस, कि भाई जो हम वेपन बना रहे हैं इसी की वजह से लड़ाइयाँ हो रही है। क्या ऐसा कुछ कहा है उसने? नहीं, उसने तो कह रहे कि भाई वेपन नहीं बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं करेंगे, वो तब भी करेंगे। सेकंड इज द ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन वेपन बिल्डिंग बाय अस वुड लेसन द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद आवर नेबर्स। ये तो पैसेज में क्या ही रहा है वो, कि अगर हम वो वेपन स्पेंडिंग में अगर हम स्पेंडिंग कम कर दें तो उससे कॉन्फ्लिक्ट की जो चांसेस है पॉसिबिलिटी वो कम हो जाती है। लेकिन वो गलत आर्ग्यूमेंट है, वो देख उसने खुद कहा है पैसेज में, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। इट इज नेसेसरी टू हैव स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी, यस, एंड मेनी पीपल इन इंडिया बिलीव दैट वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज ऑन वेपन बिल्डिंग। नो, उसने डी आंसर दिया था एक्चुअली में आंसर की में, लेकिन द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन सी, जो बाद में बताया गया था कि जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पे क्या है, इट इज नेसेसरी टू हैव स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी, कि भाई ये नहीं लड़ाई करनी है लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए वेपन बिल्डिंग जरूरी है, तभी हम वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जो वहाँ पे लड़ाई ना हो जिससे। तो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट पैसेज ये पढ़ते हैं और उसमें फिर हमें क्या ढूंढना है कि व्हाट कैन बी द मोस्ट लॉजिकल assumption फ्रॉम द पैसेज. So let's read the passage, guys. Governments may have to take steps which would otherwise be an infringement on the fundamental rights of individuals, such as acquiring a person's land against his will or refusing permission for putting up a building, but the larger public interest for which these are done must be authorized by the people, that is the parliament. राइट, तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को कई बार ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जो वैसे तो क्या कहा जा सकता है कि किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट को का उल्लंघन होता है जिनसे, जैसे किसी की ज़मीन को एक्वायर कर लिया, जैसे रोड बनाना है या रेलवे लाइन बिछानी है, तो लोगों की ज़मीन एक्वायर होती है, पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन ज़मीन एक्वायर हो जाती है, या फिर कोई कहीं पे एक बिल्डिंग बनाने की परमिशन ना मिलना, ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट करती है. लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में क्या होना चाहिए कि ये ऐसे जो डिसीजंस हैं वो सिर्फ किसको ऑथराइज होनी चाहिए, जो पार्लियामेंट में लोग हैं उनको, मतलब पीपल हु आर चोजन बाय द पीपल. ठीक है, डिस्क्रेशनरी पावर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन, वो कह रहे हैं जो ये अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनको जो पावर दी जाती है डिस्क्रेशनरी पावर, सो डिस्क्रेशनरी पावर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डन अवे विद, कि उनको बिल्कुल खत्म किया जा सकता है. इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू कीप दिस पावर विद इन लिमिट्स एज द गवर्नमेंट हैज मेनी नंबर ऑफ टास्क टू परफॉर्म. और इसीलिए ये जो पावर है इसको मतलब रख पाना या इसको सही इस्तेमाल कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को और बहुत सारे काम होते हैं. वेयर डिस्क्रेशन हैज़ टू बी यूज्ड देयर मस्ट बी रूल्स एंड सेफ गार्ड्स टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ दैट पावर. तो वो क्या करें कि जहाँ पे ऐसी पावर मिलती है वहाँ पे रूल्स होने चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि भाई उस पावर का मिस यूज ना हो. सिस्टम्स हैव टू बी डिवाइज्ड विच मिनिमाइज इफ नॉट प्रिवेंट, कि एटलीस्ट ऐसे सिस्टम होने चाहिए जिससे ये पावर का गलत इस्तेमाल मिनिमाइज हो, अगर बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता एटलीस्ट मिनिमाइज हो जाए द अब्यूज ऑफ डिस्क्रेशनरी पावर, कि उनका गलत इस्तेमाल ना हो. गवर्नमेंट वर्क मस्ट बी कंडक्टेड विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ रिकग्नाइज्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, के गवर्नमेंट का जो काम है वो रूल रेगुलेशन के तहत होना चाहिए. एंड डिसीजन शुड बी सिमिलर एंड प्रिडिक्टेबल, और हर सिचुएशन में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, वो सेम और प्रिडिक्टेबल होने चाहिए. ये नहीं कि किसी के लिए कोई और रूल बन गया, किसी के लिए कोई और रूल बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो अपने पर्सनलाइज्ड उनके मर्जी से हिसाब से जो ब्यूरोक्रेट जो करते हैं. तो इसके अगेंस्ट उसने पैसेज लिखा है. तो अब क्या अजम्पशन लिया जा सकता है इस पैसेज में से, गवर्नमेंट शुड ऑलवेज बी गिवन, ये देखो ये ऑलवेज वाले एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं, गवर्नमेंट शुड ऑलवेज बी गिवन वाइड डिस्क्रेशनरी पावर इन ऑल मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि गवर्नमेंट को सारे अधिकार दे दो हर चीज़ में. ऐसा नहीं कह रहा वो कि हर चीज़ में सारे अधिकार गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, ऐसा नहीं है. वो कह रहा है कि उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए. सेकंड है, द सुप्रीमेसी ऑफ रूल्स एंड सेफगार्ड शुड प्रिवेल एज अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्क्रेशनरी ऑफ अथॉरिटी. यस, कि रूल्स और सेफगार्ड ज़्यादा मायने रखने चाहिए इंस्टेड ऑफ डिस्क्रेशनरी पावर, ये कहा है उसने पैसेज में. और देखते हैं थर्ड, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली इफ द गवर्नमेंट हैज वाइडर डिस्क्रेशनरी. नहीं, ये देखो ये फिर एक्सट्रीम ऑप्शन बन गया, ओनली वाला. एंड नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज अ लॉजिकल assumption that can be made. No, I think the correct assumption is option B. The supremacy of rules and safeguards should prevail as opposed to the influence of exclusive discretionary of authority. Okay, मतलब रूल्स रेगुलेशंस की ज़्यादा पावर होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ अपनी डिस्क्रेशनरी पावर जो ब्यूरोक्रेट्स को या एडमिनिस्ट्रेटर्स को मिलती है. दैट इज द मैसेज कन्वेड और assumption that can be taken from the passage. राइट, सो इस तरह से गाइस पैसेज सॉल्व करके हमें लॉजिकली और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके और विद 100% एक्यूरेसी के साथ अपने आंसर्स को मार्क करना होता है इन द एग्जाम. तो गाइस आई होप दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन फॉर सीसैट. इफ यू लाइक द वे वी आर टीचिंग यू, वी आर हेल्पिंग यू आउट इन दिस जर्नी, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन आवर कोर्स. इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर ओनली सीसैट. For only CSAT, we have a comprehensive course where we are aiming to prepare you for CSAT within 100 hours. So in this course, we are providing you all the concept classes along with the downloadable PDFs. Then there are sectional tests along with full length tests so that you can practice on your own. And then there are weekly live doubt sessions so that you can ask us any question that you may have. And then at the end, we will also be conducting live revision classes before the exam. So this is a complete one-stop solution for your CSAT preparation. Come join us and get benefited from this. And I'm sure you will make the right decision. The link for our course has been given in the description of the video, so go check out the offerings and look at the feedbacks given by the previous students about the course, about the study material that we have provided in the course. So thank you so much for this session again. Thank you so much for your precious time, for your receptiveness. And guys, if you have any doubts, if you have any queries, you can call us on this number during the office hours, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.
edutab.co.in. I'll repeat it again, hello@edutab.co.in for any of your queries. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you'll do very well in the long run. So God bless you all and happy learning to all of you.